I am Dr. Deepshika Parashar, working as an assistant professor selection grade in the Department of Political Science and International Relations in IS Deemed to be University Jaipur. I am also a member of Writer Reservoir Group. I extend a very warm welcome to all the esteemed participants and dignitaries present here on the fourth day of our workshop titled AI in Research, AI in Research, Redefining Methodology, Empowering Analysis. In yesterday's session, we learned how a focus and a detailed prompt ensures that ChatGPT delivers information that is not only accurate but tailored to your specific needs. The focus for the day is on hypothesis testing using AI, understanding parametric and non-parametric tests, and group analysis powered by AI tools. These topics are pivotal to modern day research framework. Before we proceed further, I would like to extend the gratitude to our chief patron, Professor Sanjeev Bhanawat. Sir, at the heart of this workshop is the vision and the guidance of the sir, whose academic leadership and commitment to innovative pedagogy continues to inspire researchers and learners alike. We thank you, sir, for your constant support and encouragement. We once again are very privileged to have with us Professor Manvinder Singh Pahawa, our esteemed subject expert for this workshop series. His consistent presence and insightful sessions have immensely enriched our understanding of AI in research. We look forward to yet another enlightening interaction today. Without further delay, I now invite our esteemed subject expert, Pahawa sir, to take the session forward. Sir, the platform is yours. Okay, am I audible now? Yeah, thank No, you. sir. Yeah. Yes, sir, you are audible. Yeah. Thank you. Thank you, Deepshika. And I hope there is no echoing now. Okay. Am I clearly audible now? Yes, sir, you are audible. Yes, sir. Yes, Completely sir. audible. Thank you. Thank you. Thanks for the confirmation. Yeah, so today is the fourth day, and we will be doing some frequencies and charting over here. And we will be going with some hypothesis testing also today. So more emphasis will be on learning the research part and applying it to using this artificial intelligence, which is the platform which we are using over here is the ChatGPT itself. Okay, so let us just talk about frequencies. Okay, can anyone tell me about what the frequencies are? What do you mean by frequencies and how these are reported? Anyone? Yeah, please raise your hands. Yes, frequencies. What frequencies are? Yeah, any hand raised happened? Okay, Renuka ji, please. Yeah. Yes. Yeah, Renuka ma'am. Sir, I would say it's the number of times a value has occurred. Okay. And what is the importance of this in any of the researches? Why we do report the frequencies and why the reporting of frequencies is required? I would say the higher the frequencies, the more significant that particular event or value is. Okay. Yeah. Anyone else? Thank you, Renuka ji. Yeah. We get a pattern. We get a pattern, sir. Who's this? Devashish, sir. Yeah, Devashish. Yeah, please open your video always. Yeah, sorry. Yeah, So we get a pattern of patterns with the frequencies. Number of frequencies, we get a certain pattern. Yeah, what else means? Why do we report it? Pattern we are getting. You are very correct, because without pattern you cannot actually
proceed further. Yes. Anyone else? Why we reported? Yes, please. Namaskar, sir. Shweta. Yes, Shweta. Sir, may I answer? Yeah, please. Yeah, sir, to understand this frequency means the percentage or the proportion of time You are the doctor? particular thing has happened. What's your introduction, ma'am? Please open your video also. Dr. Sheel is here. So this is Sheel, Dr. Sheel from BVI camp. Okay. Yeah, Yeah. Dr. Sheikh, what you want to Sir, say? so Please, sir. the frequencies are helpful to understand the percentage or the proportion of the population or the data as to count the number of time that the particular thing is happening. Absolutely, very correct. Anyone else wants to answer? Let us have some more insights. Excellent, Dr. Sheikh. Shweta ji wants to say something. Yeah, please. Shweta ji, Carry on. Yeah, Tadushree, ma'am, yes, please carry on. Good evening, sir. Yeah, Very good evening. Sir, frequency, basically, it would mean that the number of people, like, for example, if you have asked a particular question, like, please, on the basis of gender, that which one of these characteristics maybe in a VFX film you like the most. So the first table which comes is the frequency, and which shows that the number of people in case of male and female, how many of them have, given their perception. So that can be sometimes calculated through the chi-square test also. Yes, sir. Excellent. The chi-square test actually doesn't tell us frequency. It tells us about the cross tabulation. Yes. So frequencies alone, if you want to understand them more, you can directly enter the command of frequency. It will tell you the frequency of the standalone. When we are talking about, because now you have just introduced the concept of chi-square, so let me tell you that, because whenever we have to go for cross-tabulation, of course, it also tells us the frequency first, but the Right. cross-tabulated frequency. Suppose gender is to be tabulated against the income. So income, we might be having low, middle, and high, and gender we have, you can say male and female. So if I want to understand, and if I want to know that how many females are in lower or middle or higher income group, it will tell you. So this is called cross tabulation. But if I just want to understand and know how many number of females are there, that's it. Okay, so I need not to go for check this chi-square. Right. Okay. If I want to understand only about males, that what number of males are there in my data set, or what are the number of people having higher income, irrespective of gender. Okay, so this is what frequency does. Okay, yes, Right. Neil madam, you want to say something? Thank you. Thank you, sir. Yeah. Good evening, sir. Yeah, very good. Yes, Good Neil, evening. please tell. Actually, sir, frequency, according to me, it's like the number of times a specific event or an issue has occurred, and Very that too in a specific time of frame. Very good. And then the main reason that we do is that we want to see what's the relationship between the independent and the dependent variables. That comes after. That comes when we are talking about regression, right? Yes, So yes, sir. that is actually, we make ourselves more complicated. I would say it's very easy and very simple. I just that's why that is the reason that why I asked so simple question. Okay, sir. Anyways, because we all have now insights regarding. Yes, Renuka ji, your Rachna Goswami, please. Good evening, sir. Yeah, very good. Sir, I just wanted to say that frequencies are just to analyze the data that we have collected for our research. Yeah, you are very correct. Actually, the main purpose. Thank you so much. Thank you, sir. Yeah. Now, what happens actually? Yeah. Is there anyone else who wants to, who has raised the hand, wants to speak anything? Yes. Sir,
Please, Girish ji, you raised hand well in advance, but I couldn't give you the chance. Please, you are having all the time. Yeah, carry on, sir. Oh, thank you so much, sir. Thank you for giving me the opportunity. Opening your video is important, sir. Sir, actually, sir, there is a network issue na isme No video. issue, sir. Let the network issue come up. Open the video. Today, there are no excuses. Okay, sir. I am trying to just, sir, but actually, sir, in my as per the physics, sir, the frequency can be measured like. आप बोलिए तो सही वीडियो, कोई बात नहीं. Okay, sir. हाँ जी, बताइए. Thank you आपको so देख much. के अच्छा लगा हमें. Thank you so much, sir. Thank you. So, सर अभी सभी ने जो डेफिनेशन बताई है, बाकी सभी एक्सपर्ट्स हैं यहाँ पे, हम तो एज ए स्टूडेंट, तो मुझे लगा कि कुछ एक डिफरेंट डेफिनेशन बतानी चाहिए फ्रीक्वेंसी की. बाकी अक्रेंसेस जो है, तो इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स में सर मुझे लगा कि जो हमने फिजिक्स में पढ़ा था कि फ्रीक्वेंसी को मेजर किया जाता है हर्ट्ज में. बिल्कुल. तो जो उसकी यूनिट है हर्ट्ज है, और जनरली हमने देखा था कि उसमें जो 1 हर्ट्ज होता था दैट इज इक्वल टू 1 साइकिल पर सेकेंड, मतलब जस्ट लाइक टू 1 कंप्लीट वेव. आप तो वैसे बताइए ना, बिजली की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? व्हाट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया? एसी करंट की फ्रीक्वेंसी क्या होती है सर? फिजिक्स की बात अगर करें तो. हाँ सर. एसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट की क्या फ्रीक्वेंसी होती है भारत में? सर मे बी सर एम्पियर सर. नहीं, फ्रीक्वेंसी जो आप बता रहे हो फिजिक्स की टर्म्स. यस सर. उसकी एसी की जो अल्टरनेटिंग करंट होता है, वो इंडिया में उसकी क्या फ्रीक्वेंसी है? उसकी फ्रीक्वेंसी होती है सर 60 हर्ट्ज. कहने का मतलब ये होता है कि अगर आप, मतलब 60 हर्ट्ज का मतलब हुआ कि 1 सेकंड में वो करंट 60 बार आता और जाता है. ठीक है. आपको पता है ना झटका क्यों लगता है? तो अपन बिजली का तार पकड़ लेते हैं तो झटका क्यों लगता है? देखिए, वैसे तो आउट ऑफ द बॉक्स है, बट मैं आपको फिर भी बताना चाहता हूँ क्योंकि आपने बात करी फिजिक्स की, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ. जब अपन बिजली का तार पकड़ते हैं तब आप सोचो कि आपको अगर कोई बंदा 1 मिनट में, 1 सेकंड में 60 बार हिला दे तो क्या हाल होगा? वही हाल होता है जब अपन बिजली का तार पकड़ लेते हैं, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज होती है, क्योंकि उसमें जो करंट है वो 1 सेकंड में 60 बार आता और जाता है, आना जाना आना जाना आना जाना. ठीक है ना. और अगर इसी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया जाए तब तो बिल्कुल ही मतलब हालत खराब हो सकती है. सर वो फॉर्मूला भी F equal to 1/T जो फॉर्मूला था सर. तो आप लगाएंगे इसमें तो पता चल जाएगा करंट के साथ में फ्रीक्वेंसी का क्या रिलेशन रहता है. पर चलिए अपन लेट अस बैक टू जर्नलिज्म जो अपन अभी कर रहे हैं, और बैक टू द सोशल साइंस. तो देखिए, नॉर्मली फ्रीक्वेंसी का यूज क्या होता है? फ्रीक्वेंसी किसी भी डेटा को समझने के लिए हमारे को फ्रीक्वेंसी को जानना बड़ा जरूरी होता है. कि सपोज मेरे डेटा सेट में कितने मेल और कितने फीमेल, मेरे डेटा सेट में किन किन धर्मों के लोग हैं, या फिर जब मुझे पता चल जाएगा कि मेरे डेटा सेट में हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, तो मैं सोचूंगा अरे यार इसमें पारसी नहीं है ना, अरे इसमें ये पर्टिकुलर जो बौद्ध धर्म है इसका रिप्रेजेंटेशन नहीं है. तो मुझे अपना डेटा सेट को समझने में ज्यादा आसानी और ज्यादा जो है वो सुविधा हो. तो फ्रीक्वेंसीज को हम इसलिए रिपोर्ट करते हैं कि जब हम अपने डेटा सेट को किसी और लेमैन को समझाते हैं तब हमें उनको ये बताना होता है, वी हैव टू टेल दैट लेमैन that what is the number of people in our particular number of whatever data is there with us. उनके नंबर हमारे को बताने को. So when we are telling that number to someone, then the other person is having a idea. अच्छा ऐसा है, okay fine. अच्छा इतने मेल है, इतने फीमेल, अच्छा इसमें से इतने लोग जो हैं वो इनकम इनकी इतनी होगी. आपके मन में जिज्ञासा जागेगी कि लेडीज की इनकम ज्यादा है या फिर जेंट्स की इनकम ज्यादा है, ये कैसे पता चले? फिर आगे आप जैसे आगे बढ़ेंगे तो क्रॉस टेबुलेशन आ जाएगा, उसमें पता चल जाएगा कि कितनी लेडीज की लो है, मिडिल है, हाई है, कितने जेंट्स की लो, मिडिल और हाई है.
अब अपने को ये देखना है कि दोनों में क्या कोरिलेशन है, क्या लेडीज और जेंट्स को अपने माइंड में अपने आप ही हाइपोथेसिस बननी स्टार्ट हो जाती है। We actually try to see the data from one angle, but we actually the mind actually becomes itself curious about the data which is there. So that's why these frequencies are important. तो इसके बाद में अपन पढ़ेंगे आज. So it is the part, this part of workshop deals with the frequency and the graphical presentation of the frequencies in bar chart, pie chart, histogram, and percent. So each of these procedure is described in the following slides. So frequency is one of the ChatGPT command. You can even give it, right? Possible to access certain graphs directly, specifically bar graphs, pie charts, histogram, rather than accessing them through the graph command in your Excel. ठीक है, वो आप सीधा इससे पूछ सकते हो. तो frequency is one of the simplest yet one of the most important, useful for all ChatGPT procedures. आप कहीं पे भी इसको apply कर सकते हो. So frequencies command simply sums the number of instances in a category. Suppose, for example, there are 56 males and 37 females. There are 16 whites, 7 blacks, 14 Hispanic, and 19 Asians, and 5 others. Right? तो ये मैंने already आपको मैंने एक फाइल दी थी जिसके अंदर कल मुझे किसी ने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था. I was asked this question yesterday that what should I report in my should I directly report that the things which have come out of the ChatGPT, can I report it that I have calculated it from? Today I will show you the SPSS also. I will show you the GPT also, and you can see there is no difference in the data which is coming from ChatGPT and the SPSS. This we will show. Though SPSS is not a part of this workshop, but there was a query, so I must answer that. So I will do that, right? बार चार्ट्स क्या काम आता है? सबसे पहले देखिए अलग अलग तरह के चार्ट्स है, अलग अलग तरह की चीजें अपन ने यहाँ पर देखा किस किस तरह से बार चार्ट्स हो गया, आपका पाई चार्ट्स हो गया, हिस्टोग्राम हो गया, ये सब चीजें आपकी रहती है. तो इन सब चीजों से अपन जो है वो निकालेंगे कि किस तरह से फ्रीक्वेंसी इफेक्ट होती है. लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे बार चार्ट अच्छा लगा तो मैंने बार चार्ट बना दिया, मुझे तो वो गोल गोल पसंद है तो मैंने पाई चार्ट बना दिया. ऐसा नहीं होता है. और हम लोग उसको नॉर्मली हमें पता ही नहीं होता है कि कब कौन सा चार्ट बनाना. तो वो भी अब अपन देखेंगे कब कौन सा चार्ट बनाना चाहिए. आपको ये सारे चार्ट इसलिए नहीं दे रखे कि आपकी मर्जी आए वो आप बना दो. इन सबके अपने अपने एक रूल्स है, एक उनके वो तरीके हैं बनाने के. तो बार चार्ट कब यूज होता है? बार चार्ट यूज होता है कैटेगोरिकल डेटा. और कहने का मतलब नॉन कंटिन्यूस टाइप ऑफ डेटा जो रहता है. कैटेगोरिकल डेटा दो तरह का होता है, नॉमिनल और ऑर्डिनल. तो अगर डेटा नॉमिनल है और ऑर्डिनल है तो आप बार चार्ट बनाएंगे. जैसे जेंडर आपको बताना है, इथनिसिटी बतानी है, ग्रेड वेरिएबल्स रिप्रेजेंट करने कैटेगोरिकल डेटा के, तो आप इसमें बार चार्ट बना के आप बता सकते हो कि ये वेरिएबल है. ठीक है. अब जैसे फॉर एग्जांपल आपको किसी को डिस्टिंक्ट कैटेगरी में डालना है, जैसे ABCDEF. जैसे मेरे को जो एग्जाम में मेरे ग्रेड्स मिले, कुछ बच्चों को ग्रेड्स मिले ABCD. सपोज 500 बच्चे थे मेरी क्लास में, उनको ABCD और F ग्रेड मिला है. तो A वाले कितने, B वाले कितने, C वाले कितने, D वाले कितने और F वाले कितने, इसको मैं बार चार्ट्स के थ्रू बताऊंगा तो ज्यादा उसका पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन ज्यादा अच्छा रहेगा. ठीक है. तो ये क्या है कि उनको डिस्टिंक्ट कैटेगरी में बांट दिया, चाहे वो मेल फीमेल हो, चाहे वो ग्रेड्स हो, चाहे वो इनकम ग्रुप हो. तो अपन जैसे ही अपन किसी भी चीज को कैटेगरी में बांट देते हैं तो डेटा कैटेगोरिकल डेटा हो जाता है. सो दीज वेरिएबल्स कैन बी एप्रोप्रिएटली डिस्प्लेड इन द फॉर्म ऑफ द बार चार्ट. अब कंटीन्यूअस डेटा जो रहता है उसमें सीरीज रहती है. जैसे फॉर एग्जांपल हाइट्स ऑफ पीपल, मतलब ऐसे सारी चीजें जिसको जो इंटरवल का डेटा हो और साथ में या स्केल का डेटा हो, इन दोनों डेटा को आप जो है, या रेशो का डेटा, मतलब इन दोनों ये दोनों स्केल्स. तो स्केल का कोई भी डेटा होगा तो उसको अपन जो है वो हिस्टोग्राम में दिखाते हैं. तो उसको अपन बार चार्ट में दिखा ही नहीं सकते. उसका बार चार्ट बनाओगे तो हर चीज का एक अलग अलग बार चार्ट बना हुआ आ जाएगा. तो कंटिन्यूअस डेटा कंटेन्स अ सीरीज ऑफ नंबर्स. अब है क्या यहाँ पे, ए कैटेगरी में कौन आ रहे हैं? ए कैटेगरी में वो लोग आ रहे हैं जिनकी ग्रेड 90 से 100 के बीच में. बी कैटेगरी में कौन आ रहे हैं? जिनकी ग्रेड 80 से 90 के बीच में. सारे लोग इकट्ठे एक कैटेगरी होता है. अगर मैं इनको कैटेगरी में नहीं डाल के सिर्फ परसेंटेज के बेसिस पे ही अगर मैं बनाना चाहूँ तो मैं बार ग्राफ नहीं बना सकता. क्यों? क्योंकि हर परसेंटेज का एक लाइन खींचेगा वो, उसपे उसके कितने लोग उसमें आए वो सब उसके तरह आ जाए. तो आपको एक बड़ा स्कैटर्ड सा, मतलब बड़ा गंदा सा एक वो मिलेगा जिसको आप एनालिसिस ही नहीं कर पाओगे. तो इसलिए कंटिन्यूअस डेटा को हम लोग बार चार्ट में नहीं दिखाते हैं. हम लोग उसको सीरीज ऑफ नंबर, मतलब ऐसे सारी चीजें जिसको जो इंटरवल का डेटा हो और साथ में या स्केल का डेटा हो, इन दोनों ये दोनों स्केल्स. तो स्केल का कोई भी डेटा होगा तो उसको अपन जो है वो
कंटिन्यूस डेटा को हम लोग एक स्पेसिफिक उसमें दिखाया जाता है जिसको अपन हिस्टोग्राम, और हिस्टोग्राम के साथ साथ मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी अपन जो है बता, ठीक है। तो ये ग्राफिकल हिस्टोग्राम के साथ में हिस्टोग्राम अपने बता देता हूँ आपको, जैसे भी मैंने बताया कंटिन्यूस डेटा के लिए ये ऑप्शन का यूज होता है। तो ये क्या करता है कि रेंज ऑफ वैल्यूज को डिपिक्ट करेगा आपका। सो अ हिस्टोग्राम इज यूज्ड व्हेन द नंबर ऑफ इंस्टेंस ऑफ अ वेरिएबल इज टू लार्ज। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया ना कि 500 स्टूडेंट्स, अब मुझे उनको जितने मार्क्स मिले उसमें डालने, लेकिन मैं बिना कैटेगरी के करना चाहता हूँ तो मैं हिस्टोग्राम का प्रयोग यहाँ पे कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे ग्रेड्स अभी नहीं मिले, ठीक है। तो इसमें क्या है कि फाइनल पॉइंट का जो ब्रेकडाउन है वो किस तरह से होगा, तो इस तरह से इसको लेके देख सकते हैं। जैसे मैं भी आपको बताया था कि इसको अपन ने कन्वर्ट किया, तो इसमें क्या है कि दोनों के बीच में एक रेंज रहेगी, इसलिए ये हिस्टोग्राम को इसमें बनेगा। परसेंटाइल्स क्या होते हैं? परसेंटाइल ऑप्शन भी कितनी बार अपन काम में लेते हैं। परसेंटाइल क्या है? परसेंटाइल ऑप्शन will compute any desired percentile of continuous data. जैसे अपने को ये बताना, जब for instance if a score of 111 was at 75th percentile, this would mean 75% values are lower than 111. अगर 75 percentile पे 111 आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि 75% वैल्यू आर लोअर देन 111 एंड 25% वैल्यूज आर ओनली हायर, मतलब आप 75 परसेंटाइल पे हो। ये परसेंट नहीं है, ये परसेंटाइल है, ठीक है ना। तो ये आपको बताएगा, पार्टीशन वैल्यू एक मिलेगी तो आपको बताता है कि आपके ऊपर कितना है नीचे। तो ये जैसे अपन आपके जैसे इसका स्कोर आता है, कैट का स्कोर आता है, अपना ये CUET का स्कोर आता है, ये परसेंटाइल में आता है कि भाई कहाँ पे कितना, कौन कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, वो ये चीज बता दो। जैसे हिस्टोग्राम मैंने आपको पहले बताया था। अब क्या बताइए, अब क्या डिफरेंस है बार चार्ट और हिस्टोग्राम में, कौन बताएगा? दोनों लगते एक जैसे ही, अभी भी मैंने बताया भी है। बार चार्ट और हिस्टोग्राम में क्या फर्क है, कौन बताएगा? जल्दी बताइए। यस गिरीश जी बताइए, आपका हाथ खड़ा हुआ है। अच्छा कोई और बताए? यस एनीवन एल्स? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बार ग्राफ एंड हिस्टोग्राम? अभी मैंने बताया। यस एनीवन? बहुत सिंपल है, अभी बताया आपको। बार ग्राफ एंड हिस्टोग्राम इज दैट हिस्टोग्राम कंटिन्यूस डेटा के लिए यूज होता है। हिस्टोग्राम कंटिन्यूस डेटा के लिए या फिर नॉन कैटेगरिकल डेटा के लिए नॉन के लिए यूज होता है आपको। बार ग्राफ विल बी यूज्ड ओनली फॉर कैटेगोरिकल टाइप ऑफ कैटेगरी। चलिए, तो अब अपन बात करें अगर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की, तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में क्या क्या कवर होगा, मतलब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्यों जरूरी है। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में देखिए मीन मीडियन मोड आ जाएगा, आपकी सेंट्रल टेंडेंसी सारी आ जाती है, और उसकी वेरिएबिलिटी, मीन के आसपास की वेरिएबिलिटी कितनी, कितना वेरिएंस है, मतलब उस डेटा की स्कैटरिंग कितनी, ये अपने को पता चल जाएगा। साथ में उसकी नॉर्मलिटी अपन देखेंगे कि कितना स्क्यूड है डेटा, मतलब स्क्यूनेस और कुर्टोसिस उसकी अपन देख सकते हैं। साथ में ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, मुझे हमेशा एक क्यूरियोसिटी रहेगी कि क्लास के अंदर हाईएस्ट किसके है। तो अगर अपन किसी भी क्लास को पढ़ाते हैं तो अपने को ये बिल्कुल जानने की वो रहती है कि सब क्लास में हाईएस्ट किसके है, तो मैक्सिमम वैल्यू, सबसे लोएस्ट किसके है, मिनिमम वैल्यू। और मैक्सिमम और मिनिमम के डिफरेंस को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं रेंज। और एक चीज और होती है जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। तो ये सारी की सारी चीजें जो रहती है ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर हमारी रहती हैं, और इन सबको को जानना बड़ा जरूरी है, क्योंकि जब भी आप कोई रिसर्च पेपर लिखते हो तो इन सबको आपको रिपोर्ट करना ही करना है। पहले इंस्टेंस में आपको और कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को आपको रिपोर्ट करना है। अच्छा, अब ये तो हो गई बात इसकी। अब आप मुझे बताइए स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस किसको, क्योंकि अब अपन बात करने वाले हैं हाइपोथेसिस, तो अपन स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस किसको कहते हैं, क्या है सिग्निफिकेंस, क्या है? कौन बताएगा? यस तनुश्री। Hello. Yeah, Tanushree, please. So statistical significance, if I'm okay, if it is
0.05 or maybe less than 0.05, so that shows that there is a kind of a significant difference. Like for example, whenever we go for any kind of a research, we have an alternate hypothesis as well as a null hypothesis. So if the significance level comes 0.05 and less than 0.05, so that way it shows that the alternate hypothesis gets proved, and therefore definitely the null hypothesis gets disapproved. So that shows that whatever we are telling may be on the basis of demographic profile. If we are trying to find out there is a significant difference on the basis of age or gender, and if the calculation comes 0.05 or less than that, it means that there is a significant amount of difference in regard to the perception of the respondents. You have explained everything except my question, what is significance? आपने पूरा एक्सप्लेन कर दिया और एकदम सही एक्सप्लेन किया। Thank you, sir. बट अभी भी मुझे ये नहीं पता कि सिग्निफिकेंस होता है क्या, इसको सिग्निफिकेंस ही क्यों कहते हैं? चलिए देखते हैं सिग्निफिकेंस और अपन स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस, इसका सीधा संबंध है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, so the word probability is the source of the latter that represent the significance, that is p value, right? अपन जब बात करते हैं, आप जो बात करें ना 0.05 का, वो 0.05 है क्या? वो p वैल्यू, उसकी प्रोबेबिलिटी है। राइट सर। अच्छा चलिए मुझे एक बात बताइए कि अभी अपन आगे भी इसी बारे में बात करेंगे कि p वैल्यू क्या है। तो मुझे एक बात बताइए कि मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स में क्या फर्क है? Anyone? कोई भी? Can anyone tell me the difference between mathematics and statistics? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। गिरीश जी हमेशा बोलेंगे तो कैसे काम चलेगा? Yes, anyone else? आप चाहें तो अपना वीडियो ऑफ कर सकते हैं। गिरीश जी आपको देख लिया आपने, आपका डेटा भी यूज हो रहा है। Yes. Good evening, sir. बताइए। Mathematics can be focus on abstract structure. आपकी मेल आवाज आ रही है मुझे, ऐसा क्यों हो रहा है? एक्चुअली मेरा सर मोबाइल में चल नहीं रहा था, तो मैंने अपने मदर के मोबाइल से ज्वाइन किया हुआ है। ओके, आपका क्या इसलिए नाम है? डॉक्टर वैभव शर्मा जी। प्लीज डॉक्टर वैभव बताएं। Sir, mathematics just like we explore the numbers, quantity, shapes, patterns, and the statistical portion we can use the focus on data analysis, like involve collecting, analyzing, interpreting data net. And mathematics also involve the theoretical foundation, provides the theoretical framework, understanding various phenomena, algebra, geometry, calculation, therapy, topology, like. And a statistical method can be used as the statistical deals with uncertainty, variability in data using probability theory, statistical inferences, like Excellent. So that's the difference. Excellent. Very good. Shweta, you want to say something? Thank you, sir. Thank you, sir. Shweta ji, you want to say something? Your hand is raised. Yeah. Anyone else? Some Nirman was there who actually raised the hand. Yes. Neelam Imran. Yes, Neelam, please. Yeah, it's similar to what Anita has said, that mathematics is more of a theoretical approach and statistics is more of realistic on the real data approach. So that's the major difference which I feel is between maths and statistics. Very good. Very clearly said that statistics, see, mathematics is a calculation where 2 and 2 plus 2 will be 4. So anything can be proved in case of mathematics, but in case of statistics, we already run on probability of the p value. So whenever our calculation, we are doing any calculation, we are doing any prediction. See, statistics actually deals with something in which you are predicting. Okay, so can we predict with 100% accuracy? Tell me. Can we predict with 100% accuracy? Can it ever happen? If it happens
with 100% accuracy, if we can predict, then you will be not less than God. We always predict, and that prediction will not be a prediction. It will be a statement which has to come true. Like tomorrow, the sun will rise in the east direction if the earth survives. But yes, there is again a probability that sun may not rise from east direction, or sun may not rise at all. But the probability is 0.0000000000 to infinity 01. Right, sir. Right, sir. Okay. So this is something on which we work with the probability, that there is some probability that the things may not occur. Right? And if this p-value actually denotes that only. That's why we say that if we are you can say significant in something, then the p-value, the lesser the p-value, better. Let's explore more about the p-value. So p-value identifies a likelihood that a particular outcome may have occurred by chance. Okay, so p-value says that, because there can be a calculation which may be a mistake or may have happened because of some error. So what is the quantity of error in that? You can say, for example, group A may score an average of 37 on a scale of dispersion, where a group B may score on 41 on the same scale. If the t-test, because there are two separate groups, if the t-test determines that the group A differs from the group B at p 0.01 level of significance, it may be concluded that there is only one chance in out of 100, or you can say one probability out of 100, that the result may have occurred by chance. Otherwise, 99% or 99 out of 100 probability that the discrepancy score is a reliable finding. Okay, that there is a difference is a reliable finding. So this, how come we will be able to do this? With the help of p-value. That's why we always test our hypothesis. We do not prove our hypothesis. Okay, so the hypotheses are subject to be tested, and tested on the p-value. Okay. So regardless of the type of the analysis, the p-value identifies a likelihood that a particular item or particular outcome may have occurred by chance. Okay. Anyways, so I hope this is clear to all of you, that what is p-value and what is significance and what is so what happens is that if there is 1% is if something is 1% significant, it is we are having 95% and 99% confidence. Okay, so confidence and significance are reciprocal to each other. So if I am 95% confident, so my significance level will be 5%. So I am testing the hypothesis at 5% significance level in order to be 95% confident. So if I'm testing my hypothesis at 1% significance, it means I want to be 99% confident about a certain things. Okay, so this is something we write in our paper also, and this is the crux, or this is the background behind the hypothesis testing. I hope it is clear to everyone. Any question up till here regarding this, so you can ask, because this is something which needs a lot of clarity. Shweta, your hand is raised from a very long time. Do you want to ask something? Shweta Jha. Okay, fine. So anyone is having any question regarding this? Because this is a very, very important part. Whatever test you see, whatever type of test you apply over here, it has to be tested on a significance level or on a p-value. Okay. So no questions, I suppose. Yeah, Girish, tell me. सर कई बार हम देखते हैं रिसर्च पेपर्स में, और इसमें जो सिग्निफिकेंस टेस्टिंग है तो कई बार 0.05 और कुछ पेपर्स में हम देखते हैं कि 0.01. तो ये किस बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं कि हमको 5% सिग्निफिकेंस देखना है या 1%? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने. एक्चुअली मैं यही ऐसा ही क्वेश्चन और यही क्वेश्चन रादर यही एक्सपेक्ट कर रहा था सर कि कोई तो पूछेगा. आपने पूछा, बहुत अच्छा लगा. सुनिए मैं आपको बताता हूँ. देखिए मैंने आपको अभी भी बताया, जैसे जैसे हम
मोर कॉन्फिडेंट होना चाहेंगे, वैसे वैसे हमारा सिग्निफिकेंस लेवल कम निकलता है। तो हम कितनी सारी चीजों को 1% सिग्निफिकेंस लेवल पे हम लोग टेस्ट करने की कोशिश करते हैं। वो कौन सी चीजें होती है, जैसे मुझे अगर केवल मेरे माल के अंदर जो मैंने मैन्युफैक्चरिंग किया है उसके अंदर मुझे डिफेक्ट निकालना, ठीक है, और मेरी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो एक सोने का जो मैट्रेसेस होता है ना, वो मेरी मैन्युफैक्चरिंग, उसके अंदर 5% लेवल का एरर चल जाएगा, वो किसी की जान नहीं जाएगी। लेकिन अगर मैंने कोई ऐसा ड्रग बनाया जिससे सीधा जो है वो किसी पेशेंट को क्योर करना है, तो 95% नहीं, मुझे फिर 99% लेवल पे मुझे उसको टेस्ट करना पड़ेगा। तो अब होता क्या है, आप कितनी बार क्या होता है, पहले अपन 95 पे टेस्ट करते हैं और टेस्ट हमारा सिग्निफिकेंट आ जाता है, तो फिर उसके बाद हम 99 पे भी टेस्ट करने की कोशिश करते हैं कि क्या पता इसमें भी आ जाए तो और अच्छा और बढ़िया। तो अगर कितनी बार 95 पे आता है, 99 पे नहीं आता है, इन दोनों के बीच में आ जाता है, तो भी हम देखते हैं कि हमारी सिवियरिटी कितनी है। कि भाई हमको अगर ये टेस्ट करने पर अगर हम इसको किसी को खिलाएंगे या फिर उसको कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा, तो अगर ऐसा कुछ है तो उसके अंदर सिग्निफिकेंस लेवल हमारे को और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। ओके, कितनी बार तो 0.001 पे भी टेस्ट किया जाए। तो जितना हाई प्रिसिशन रहेगा, जितना हाई सिग्निफिकेंस लेवल रहेगा, उतना ही आपका ड्रग या आपका चीज ज्यादा से ज्यादा रिलायबल हो सकता है। तो इसीलिए लैब्स टेस्टिंग के अंदर, लैब्स के अंदर ये सारी टेस्टिंग होती है, जितनी भी आपकी दवाइयां बनती है, जितनी सारी दूसरी चीजें बनती है। मैं आपको एक केस स्टडी टाइप बताता हूँ। आपने सुना होगा कोविड के टाइम पे बाबा रामदेव और इनकी पतंजलि का एक वो आया था, मेडिसिन आई थी जिसको अपन बोलते हैं कोरोनिल। कोरोनिल मेडिसिन, तो ये दावा किया था उन्होंने कि साहब ये कोविड-19 को मिटा देगा, और लोगों ने उसको लेना भी शुरू किया कि भाई हाँ इन्होंने बना दिया है। अब देखिए उसकी लैब टेस्टिंग नहीं हुई थी, इसलिए उसके ऊपर बैन लगाया गया, और उसको ये कहकर कि भाई ये कोविड-19 की मेडिसिन है, ये उसको बोलने से रोका गया। क्यों? क्योंकि उसकी जो प्रिसिशन टेस्टिंग थी, जैसे जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, वो पॉसिबल हो ही नहीं पाई। तो इसलिए क्योंकि अब चीज ही ऐसी है जो सेंसिटिव है, उसके अंदर अगर अपन टेस्टिंग नहीं करेंगे इस तरह की जैसे मैंने आपको बताई, तो आप कैसे दावा कर सकते हो कि किसी पेशेंट या फिर आपने किसी ग्रुप के ऊपर टेस्ट किया और उसके बाद में उसकी कोई रिजल्ट या आउटकम आया हो जो आपने एक ऑथेंटिक लैब में दिखाए हो, तब तो समझ में आता। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट होती है कितनी बार हमारे को पब्लिक में जाने के, क्योंकि ये न्यूज अखबार में आई थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको आप सब लोगों के बीच में इस ऐसी छोटी केस स्टडीज के बारे में बताऊं, ताकि अपने को इसकी इंपॉर्टेंस का पता चले कि पी वैल्यू की इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, चलिए काई स्क्वायर टेस्ट किस काम आता है मैंने अभी बताया था, कौन बताएंगे व्हाट इज द यूज ऑफ काई स्क्वायर टेस्ट? काई स्क्वायर एनालिसिस किस काम आता है? तो देखिए काई स्क्वायर अभी मैंने आपको बताया था, हाँ, cross tabulation sir. And one more thing is there where we see is there any significant difference in expected value and the observed value, इसके काम आता है। ऐसे ही अनोवा क्या बताता है अपने को? अनोवा बताता है whether the mean of one group significantly different the mean of other group or groups, right? ऐसे जो रिग्रेशन अपने को क्या बताएगा? रिग्रेशन एक्चुअली अपने को बताता है कि what correlation regression identifies? Correlation identifies the difference between the correlation between the two items, or you can say two groups. And regression tells us that does the one group impact others, or is there any significant impact of one variable on other? ये सारे, चाहे आप कुछ भी ले लीजिए, in all the instances what will happen, the significance value will be calculated, identifying the likelihood that a particular outcome is or not have. तो आपको कुछ भी आप कर लीजिए, कोई भी टेस्ट आप ले लीजिए, आपको पी वैल्यू से उसको टेस्ट करना ही पड़ेगा, तभी हम उसको लिख पाएंगे। तो एनोटेशन नॉर्मली क्या रहता है, विद द कंटेक्स्ट ऑफ द रिसर्च इन सोशल साइंसेज नथिंग इज प्रूव्ड, मैंने आपको पहले ही बताया था। It is demonstrated by the level of likelihood or significance. Smaller the p-value, greater the likelihood of that findings are valid, and it is also called confidence level. When we say we are 95% confidence, then it also means that the significance level is 5%, right? So level of significance वगैरह जो रहती है, अब उसको कितनी बार जो
जिसको अपन 5% होते तो उसको अपन 5% इज अ स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट अमाउंट उसको कहा जाता है, राइट। पहले क्या होता था कि 10% तक भी चल जाता था तो उसको मार्जिनली सिग्निफिकेंट में क्या कहते थे, पर आजकल नहीं चलता है मार्जिनली सिग्निफिकेंट, क्योंकि कंप्यूटर्स आ गए, सब चीजें, तो यू कैन exactly measure at what is the level of significance. So when a researcher writes up the finding of a particular study, certain statistical information and p-values are always included. Whether or a significant result has occurred or not is the key focus of the most of the studies that involve the statistics. So whenever you have to write any analysis, then you have to write it whether there is a significant difference or not, or whether the study is significant or not to certain, and if it is significant, at what p level it is. It has to be more than 95%, that is for sure. And still, if the study requires to write down, then you can write down that at what level it is significant, or you can say you have tested significance at certain level, then you have to mention that level of significance also. Right. So now what another thing is, what is normal distribution? Anyone? Normal distribution क्या है? Hello, sir. I'm Madhumita. Yeah, Madhumita ji. Please tell me, what is normal distribution? Normal distribution is when we do not have extreme low or extreme high, and we have some kind of average data, then we will get normally distributed data. As example, when we are collecting data on different age groups, if you get a participant who is 9 years old and a participant who is 90 years old, then you will get outlier in your data. So the data will not be called normally distributed. And if you get in your research, that is why in your research, we purposefully select the group of participants so that we can get normally distributed data. Okay, Madhumita ji, if my data is on age only, if the data is specifically on age, right, it will include those people, those who are more than 100 also, and it will include those people, those who have just born. Okay, so it's not like that it will give you any outliers. The outliers depend on what type of data or what type of collection or what type of selection you are making out of the data from which you have taken the sample. Outliers are the examples of the sample, not the whole population. Okay, it's not related to normally distribution. No, it is related to normal distribution. Now, for example, if I am collecting data from someone who is, I have to collect the data regarding, you can say, income. Okay. So the income data will be related to whom? Those who are 18 years old and above. Right? Now, two people who are at 12 years of age, they have become multimillionaires. Why? Because they were YouTubers. Okay. Okay. Now this data is an outlier. Okay. Because Okay. my Thank you purpose so much. was not to collect data from those people who are extremely out of my range, because I am analyzing the income propensity or income earning propensity of those people, those who are normal. And so I will be having my normal distribution will be from 18 years to, for example, 70 years. And there can be some people, those who are of 90 years of age, and still they are making some money out of their, maybe they are applying their mind somewhere or something like that they are doing, in which they are making money. But are all 90 years of age people making so much of money all the time? No. So that time my 90 years and less than 18 years will be the outliers. Okay. So I have to weed out the outliers in order to take the data which are needed. Right? So this is something which is no normal distribution. Actually, you have defined outliers more than normal distribution. I have asked you about normal distribution, but you are correct at your place. Okay, sir. I appreciate that. Yeah. Now let us talk about normal distribution. Now, first of all, why this distribution is
called normal distribution only. What is normality in it, or what can be the abnormal distribution? Can anyone tell me? Why a normal distribution is called normal distribution? Yes, Girish ji. Sir, in mathematically or statistically, we can say that where mean equal to median equal to mode. So we can say that it's a normal distribution. That is not a definition. Why normal distribution is called normal distribution? So the same, yes, sir. So bell shaped, like we can see. तो मेरा अगला क्वेश्चन ये कि वो बेल शेप नहीं क्यों बनता है? So because sir mean equal to median equal to mode, that's why. ये आंसर नहीं है. Sir, I think real world phenomena. Na, like Yes. Come on. Who is this? What's your name? Sir, Dr. Vaibhav. Yes, Dr. Weber. Please. That means, sir, I guess the real world phenomena, that many natural phenomena such as height, weight, and IQ score, like a normal. Very correct. The natural phenomenon, actually, if you observe, even if you observe the distance of stars from the Earth, that also will give you a normal distribution. There will be very less stars which are far away from one direction to other direction, and the stars which we can see are within us. In the same way, there will be very less people, those who are having heights of more than 8 feet. If we just consider that at 25 years of age, we have taken in our population, I am taking only those people, those who are 25 years of age. Okay. Now there can be people, those who are 7.5 feet long, but very few. Okay. And there can be people, those who are 2.5 feet or 3 feet, but very few. That's why what has happened is, by both the extremes, both the tails will be less. So there will be a tail created, but most of the people in my distribution will be having heights from 4 feet to 6 feet. Right? And this phenomenon happens for weight also. There will be very less people of 25 years of age who are having very, very lean and thin. And there can be people, those who are more than 200 kgs. But both the extremes will be very, very less. So any phenomenon you take in the world, it will be having certain distribution which is repeated again and again. So there will be less people at the tails, because it is tail because the people are less, or you can say the respondents are less, or the things are less, and the things which are in between will be more. Okay, so in between it is more, at the tails it is less. That's why that is the reason of creation of, you can say, I've given this entire thing is given in this history. Okay, and that is I'm not going to read this history, it will be a wastage of time. So what can be the thing which is a normal distribution will be having, this type of distribution will be a normal distribution which is having equal tails on both the sides. And the further characteristics of normal distribution, if you observe, one standard deviation means one standard deviation from the mean. And Girish has very correctly said that when the distribution is normal, mean, median, mode, all are same. So I have kept mean, median, mode as 0. And if we see the deviation plus minus 1, it will cover 68% of the people, or 68% of the population, or 68% of the sample if it is derived from a normal population. And if you go to standard deviation, 95.5% of the people will be in plus minus 2 standard deviation. Standard deviation is the deviation from the mean, means something is mean, something is in between, and if you are seeing the deviation from both the sides, then how much is my other things are there, right? And 99.7% people will be in my plus minus 3 standard deviation. Then the distribution will be called as a normal distribution. Otherwise, it will be called as a negatively distributed or the positively. So negatively
distributed or negatively skewed normal distribution, when it will happen? When the tail is on the left side, the tail is long. Okay. Then this is called negatively skewed. Now, when it will happen? Suppose this example is given, the time records of the runner in a 10-kilometer race. Now it is a race, so everyone will try to run if they will try to run, they will try to get the target, they will try to capture the target as soon as possible. So everyone is running. That's why there will be very few people, those who will be at the one tail. So most of the people will be beyond the mean. Why? Because everyone wants to win, everyone is running. So if you see this particular area over here, then you can find that this particular thing over here is 4. Means it is more than the mean. Mean is over here and most of the things are covered over here. So most of the values are more than mean. Then it is called negative, or you can say it is something which is having a negatively skewed. In the same way, what will happen as a positively skewed? Now see, there is a distribution of ages of person living in India. While there are individuals who are 1 year old and others who are 100 years old, the 100 years old, there are far more 1 year olds, because 100 year olds will be less than, because in India, in our country now, the birth rate has actually increased. So whatever child is taking birth, they are healthy because of our good medical facilities. So this was not there before. So that's why most of the people survive and they are less than the mean. So most of the people are on this side of the distribution, and very less people are on this side of the distribution. Okay, so this is something which is which is there. Okay, and normal, I have already told you that. So this is called skewness. So whenever we are studying skewness, we have to study this, right? So normal distribution we have studied. Now let us talk about the measurement of central tendencies. What are central tendencies and why it is measured and how it is measured? Like, okay, just to have a look of this particular story over here. What does it say? Can anyone tell me what is this particular person who has drowned himself inside the ditch of the river happens to be a great statistician. He was a student of statistics. But what fault he has done? Tell me that. Just see this particular clip and tell me what he has done and why he drowned. He used the average depth. Yeah, Renukaji, you want to say? Yeah. So I think he has thought of the average. Someone else also mentioned the same. He has thought of the average, but average can be divided by the number, but it can be the highest and the lowest. So what he should have? So what type of descriptive statistics he should have used over here instead of average? Average is also, mean is also descriptive. So what type of descriptive statistics should he use? Central tendency. Central tendency is the flaw over here. Anyone else? I don't know if it's one of mean, median, mode. Median, sir, median. Median. No. He should have used range. What is the highest maximum point? Right? He should have considered the maximum depth of this river. This particular, in order to cross it from one end to another, he should have seen the maximum value, what is the maximum depth, and he should have compared that depth with his height. That will I be able to cross it or will I get drowned? Okay. Right? So maximum, minimum, I was telling you, because I'm very much curious about when I get, when my class has scored something, I'm curious about who has scored highest marks and who has scored the lowest marks. So over crossing this river also, I must also wonder that what is the highest depth of the river, at what point it is. So before crossing it. And what he has done is he has taken the average of all the points and has drowned himself.
So this is called what? What it is called? Instead of law of averages, it Range. is called Flaw. law of averages. So that average has actually this flaw. So every average is not used everywhere again. This is what I want to say over here. And we have to report the averages all the time. Right? What is mean? What is median? What is mode? We all know. Just go through this particular slide. You will be able to understand what it is and how it is calculated. Because why I am showing this to all of you is that we have, I guarantee you, most of us have forgot this in our 8th and 9th classes when we were studying. So what is mean is just the average. You just add all and divide by number, you will get it. Median is the mid value. But for calculating mid value, we have to arrange it in ascending or descending order. Then only we will get the mid value. Okay. So it is arranged. I will not. I'm actually, there can be many questions on this, but I'm not taking those questions because I want to tell you many things more about it. Okay. So mean, median, and mode are there. And what is the variability around the mean? That is called variance. Okay. And when we just take the under root of the variance, it becomes standard deviation, which is actually the depictor of the scatter of the values around the mean. Okay. So deviation from normality, if we want to understand that how much is deviation from the normality, then we go for kurtosis. Now, as we have seen that most of the things which are actually on right side, suppose for example, here there is a mean in between. Okay, here there is a mean in between. And the deviation from left to right is called skewness. But if this mean, or if this particular distribution, though it is distributed equally, but what happens if it is peaked or it is plateaued? So that peakedness or plateauness of a distribution is studied in the kurtosis. So kurtosis actually tells us whether the things are peaked or plateaued. Okay. So this is something which we call as a platocrutic and mesocrutic. Okay. And liptocrutic. Mesocrutic is having a normal distribution, whereas liptocrutic is positive, and platocrutic will make a plateau, then it will be a negative, and that is to be studied. And we can even calculate these things with the help of our skewness. Is deviation that negatively skewed, positively skewed, right? And this kurtosis can be liptocrutic or platocrutic. Okay. So the maximum value, what is the maximum value in this? 9, right? And minimum value is 3. So what will be the range? So my all data will be between 3 and 6. Okay. Does it make sense? Does it make sense? So that is the reason why we keep on reporting the things, right? Now, what is a standard error, anyone? What is a standard error? Standard भी और error भी बताइए. मतलब standard भी है और error भी है, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन ऐसा होता है, और ये सच में ऐसा ही error है. देखिए क्या होता है, when we are actually taking the you can say anything we are, suppose for example, मैं normally क्या करते हैं अपन, population को understand करने के लिए हम sample लेते हैं. ओके. तो एक population है जो normally distributed है, and the population size is about 500. ओके. तो मैंने सोचा कि इसमें से मैं जो है वो करीब 20 लोगों का सैंपल निकालता हूँ. ओके. तो मैंने 20 लोगों का सैंपल निकाला और उनकी एज पूछी. ठीक है. क्योंकि मुझे देखना है, मुझे ये पता लगाना है कि मेरे पास जो ग्रुप है 500 लोगों का, उनकी एवरेज एज क्या है. तो मैं सभी के सभी 500 को नहीं लूंगा. What I will do is I will just collect a sample of 20 out of this random sample and will try to get the age of multiplier, means उन सबको plus करके divide by 20 कर दूंगा. Then I will get the average age. Okay. तो मैंने एक बार ले लिया. उसके बाद में मैंने क्या किया कि दूसरी बार फिर एक सैंपल निकाला. सेम पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और प्रोबेबिलिस्टिक सैंपलिंग में यूज कर रहा हूँ, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है मेरे सैंपल में, लेकिन मैंने फिर से एक सैंपल और निकाला. अब आप मुझे बताइए कि जो पहले सैंपल निकाला था
उसका एवरेज और जो अब सैंपल निकाला उसके एवरेज में फर्क आ सकता है कि नहीं आ सकता? आ सकता है सर। आ सकता है ना। और मैंने एक तीसरा सैंपल और निकाल लिया, उसका और उसमें भी फर्क आएगा। अब आप देखिए मैंने कोई गलती नहीं की, मेरा पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्रोबेबिलिस्टिक सैंपलिंग में यूज कर रहा हूँ, लेकिन हर बार सैंपल निकालने पर फर्क आ रहा है। तो मैं अब किसको सही मानूं? तो ये जो मैंने मीन निकाले ना, इन सबके जो डिफरेंसेस और सबके जो बीच में जो फर्क होगा ना, वो एरर आएगा ही आएगा, और उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम स्टैंडर्ड एरर। ठीक है, तो वो स्टैंडर्ड है और एरर तो आएगा ही आएगा, क्योंकि आप स्टैंडर्ड चीजें फॉलो भी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन वो एरर बनेगा ही बनेगा बिकॉज ऑफ योर सैम्पलिंग। और ये सैम्पलिंग एरर कब खत्म होगा? जब आप सैंपल साइज को थोड़ा बढ़ा दोगे और बढ़ा दोगे और बढ़ा दोगे, और सैंपल साइज इतना बढ़ा दोगे कि आपकी सैंपल और पॉपुलेशन दोनों इक्वल हो जाएंगी, तो ये एरर भी खत्म हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो इसलिए ऐसा कहा जाता है कि जब आपको एरर कम करना हो तो आप सैंपल साइज को थोड़ा लार्ज रखिए। तो लार्ज सैंपल साइज विल ऑलवेज गिव यू गुड रिजल्ट्स। स्क्रीनेस के बारे में हम पढ़ चुके हैं, तो आप एक काम कीजिए, आपको मैंने जो फाइल दे रखी है उसमें इनकम और ग्रेड्स की एक फाइल है ना? इनकम और ग्रेड्स की एक फाइल है ना आपके पास में? तो इनकम और ग्रेड्स की फाइल को आप जो है वो चैट जीपीटी पे उसमें लगाइए, अपलोड कीजिए और कमांड दीजिए कि मुझे इसमें जो है वो हिस्टोग्राम बनाओ। ठीक है, तो जब आप देखोगे उसको हिस्टोग्राम, तो आपको पता चल जाएगा कि वो जो डेटा है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं, और आप उसमें इंटरेक्ट कर सकते हो। चलो करते हैं अपन इसको। Let us do this. मैं आपसे अपना चैट जीपीटी वाला शेयर कर रहा हूँ। जी, तो इसमें मैंने आपको जो बताया था वो वाली फाइल अपन यूज कर ले रहे हैं। इनकम एंड ग्रेड डेटा ये आप डाल लेते हैं। इसको ओपन किया अपन, तो मैं इसको सीधा एक कमांड दे रहा हूँ कि भाई आप जो है prepare the histogram for income and grades variable. Okay. देखिए जो अटैच डेटा था उसमें वो इनकम और ग्रेड्स का वो उसने रन करना शुरू कर दिया है, और मुझे भी इस प्रोग्राम बना के देगा। ये देखिए, ये हिस्टोग्राम आया इनकम का, और ये आपका हिस्टोग्राम आ गया ग्रेड्स, और साथ साथ में इसका इंटरप्रिटेशन देखिए, द डिस्ट्रीब्यूशन अपीयर्स मॉडरेटली राइट स्क्यू। इसमें इनकम वाले के अंदर ये राइट स्क्यूनेस आ रही है आपकी, right skewed, indicating the majority of individuals falls into lower and mid income range, with a fewer individuals in higher income. Grades में क्या हो रहा है देखिए, grades are more normally distributed, clustering around the mid 80s and 90s with a few extreme or low high values. ये काफी एक ही कोई है वहाँ पे कोई आउटलायर, जैसे ये आउटलायर है अगर आप इसको देखो, तो ये इस तरह से आप जो है इसको वो आप अपनी स्क्यूनेस यहाँ से देख सकते हो कि अब जैसे ये डेटा कितना स्क्यू है। अब इसको यहीं पे मैं अपन कमांड देते हैं कैलकुलेट और अप्लाई और टेस्ट द
normality in the attached data for income and grades. तो शेपिरोज विल्किस टेस्ट और लगाएगा इसने. देखिए देखिए दोनों पी वैल्यूज उसने बता दी कि वो देखिए हर इवन ये वाला टेस्ट भी नॉर्मलिटी वाला उसने विद पी वैल्यू बताया और ये बता रहा है कि दोनों ही नॉर्मलिटी से दूर है. लेकिन अगस्टिन और पियर्सन टेस्ट इसमें इनकम और ग्रेड्स के अंदर बताया बोथ डिस्ट्रीब्यूशन डेविएट सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द नॉर्म. इसने अपने आप इस चीज को लिखा है सिग्निफिकेंटली फ्रॉम, जो ज्यादा अच्छा इंटरप्रिटेशन. अब जैसे इसने पी वैल्यू का यूज किया इंडिकेटिंग नॉन नॉर्मलिटी, बात हुई है दोनों की एक जैसी है. और भी मतलब ये अलग अलग तरह के टेस्ट जो लगा रहा है. नॉर्मली अपने को जो यूज करते हैं टेस्ट वो शेपिरोज विल्किस टेस्ट होता है, नॉर्मली स्टैटिस्टिक्स में यूज करते हैं. ओके, ऑल भी टेस्ट आप उनको भी रिपोर्ट कर सकते हो चारों को. यस, Can you please show us the prompt that you have written? Prompt is very easy. This is test the normality in the test data for the variant. So you have to name the, see actually what happens is that you have a very used variable sheet, right? So you have to tell. That's why yesterday I talked about the specificity. I'm very sorry. One thing I would like to confess over here. कल मेरे को थोड़ी नींद आ गई तो मैं सो गया और मैंने आपको वो भेजा नहीं. मैं आज आपको सारा का सारा कल और आज दोनों का वो भेज दूंगा. कल वाला जो मेरा पीपीटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको उसमें प्रॉम्प्ट्स को कैसे लिखना है और उस प्रॉम्प्ट्स की सारी इंजीनियरिंग मैंने उसमें बता रखी है. तो प्लीज सीरियसली प्रिजर्व दैट PowerPoint presentation from yesterday or if you really want to, because prompt ही सब कुछ है जी. बिकॉज प्रॉम्प्ट ही इनपुट है तो आपको प्रॉम्प्ट के हिसाब से ही चलना है ना. तो ये अपन ने प्रॉम्प्ट दिया है, आप उस प्रॉम्प्ट को चाहे तो लिख भी लें तो ये आपको बता देगा कि किस तरह का वैल्यू आपका जनरेट. ठीक है जी. तो ये अच्छा, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं अपन. दिस इज रिगार्डिंग सेंट्रल टेंडेंसी. हमने बता ही दिया सेंट्रल टेंडेंसी, फिर भी मैं आपको और थोड़ा सा और इस पे मैं इन डेप्थ में ले जाना चाहता था सेंट्रल टेंडेंसी के. पर ठीक है, मीन मीडियन मोड अपने को आता है तो मैं उसमें ज्यादा नहीं वो करूंगा. तो नेक्स्ट अपन जो चीज कर सकते हैं वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसका प्रॉम्प्ट भी मैं आपको अभी उसके बारे में भी अपन बात करते हैं और उसका प्रॉम्प्ट भी करते हैं. यस, एक चीज आपको मैं और अच्छी बताता हूँ जो होती है. तो देखिए अगर अपने को ये जानना है, ठीक है मैं हटा रहा हूँ इसे. नाउ व्हाट द थिंग इज, नाउ आई वांट यू टू, जैसे आप हाउ कैन यू एक्चुअली यू नो give a command for suppose if you want to go for, you have some idea in your mind. Now this is something which is related to your qualitative research or you can say literature review, जो कि एक बहुत आपने स्टार्टिंग में मुझसे किसी ने क्वेश्चन भी पूछा था, वो प्रिजर्व करके रखा है लेकिन उसी का ही आंसर मैं भी देने जा रहा हूँ. हाँ, हाँ, राघवेंद्र जी ने मुझे पूछा था कि what are tools to be used for a qualitative data analysis, और यू कैन से कैसे हम लोग जो है वो आप समझ लीजिए इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च अगर मुझे करनी है किसी एरिया में तो मैं कैसे उसको यूज करूं, राइट. सो yesterday we have seen that we have used ChatGPT and it has suggested us the appropriate statistical test we have asked.
right? Which is provided, and we have just asked for that key. You just prepare one complete analysis of कि मेरे पास ये data है और आप मुझे बताइए कि मैं इसमें कौन सा मैं टेस्ट लगा सकता हूँ, right? अच्छा, are we clear about our own research questions? So if you really want to ask the ChatGPT to frame certain research questions in the form that it should be framed, right? वो भी आप इसमें कर सकते हो, right? So you can use ChatGPT to frame good research questions because ChatGPT actually knows a lot, because it's a machine, and we have limitations in terms of knowledge, but this particular machine is not having. So it is having many things which actually it does, right? So particularly our networks and the social circles are very, very limited, if we see from this. And you cannot just analyze or read so many books at a time, and you cannot formulate the research question on the basis of the discipline which is not yours also. So let us take a random field. You can say क्या ले सकते हैं अपन, एम्प्लॉयज की हैप्पीनेस को ले सकते हैं, सपोज लीडरशिप को ले सकते हैं, या फिर अपन कैंसर रिसर्च को ले सकते हैं. सो लेट अस एक्सप्लोर अबाउट कैंसर रिसर्च. ना आपका एरिया ना मेरा एरिया, तो मेडिकल साइंस का एरिया है, राइट? सो सपोज अपन बीइंग अ सोशल साइंटिस्ट ना, और अपने को कैंसर के बारे में रिसर्च करना है, एंड मींस it is actually from the field in which we do not have any knowledge, right? But a medical practitioner will be having. So can we ask ChatGPT to help us out in this? So what I will do is I will just write a prompt over here that I want to pursue particularly a highly impactful research topic as a part of my you can say doctoral research project, or you can say any dissertation project, right? Doctoral research, whatever. Research project in the area of cancer research. Cancer research, sorry, in the area of cancer research. In the area of cancer research, but being a social scientist, being a social scientist, I have limited knowledge. So after previewing, after reviewing existing scientific scholarly work, suggest the research area related to well-being
of cancer patients so that I may win a Nobel Prize. इसमें काफी सारी गलतियां हैं. चलो ये तो वैसे भी ठीक कर ही लेगा थोड़ी. तो मुझे साहब नोबेल प्राइज जीतना है चैट जीपीटी का यूज करके, ठीक है, और ऐसा स्कॉलरली आर्टिकल चाहिए, क्योंकि नोबेल प्राइज तो उनको ही मिलता है जो साइंस वाले होते हैं. तो मैं साइंस का एक सब्जेक्ट ले रहा हूँ. अब मैं तो सोशल साइंस साइंटिस्ट हूँ, क्या करे, इकोनॉमिक्स के अलावा किसी भी सोशल साइंस के एरिया में नोबेल प्राइज तब तक आया नहीं. तो आई हैव टेकन दिस कैंसर रिसर्च, एंड क्योंकि अब मैं सोशल साइंटिस्ट हूँ, मैंने उसको बता भी दिया, तो कुछ ऐसा वो करे विच इज रिलेटेड टू, इसको इन्वर्टेड कॉमर्स में कर देते हैं, वेल बीइंग ऑफ कैंसर पेशेंट्स. तो मैं जानना चाहता हूँ, ये भी एक बहुत अच्छा वो हो सकता है, लेकिन मुझे नोबेल प्राइज चाहिए. देखते हैं क्या रिप्लाई करते हैं. Now see, it's telling me your unique contribution can lie in humanizing the cancer research by addressing the psychological dimensions that natural science offer overlook. So here is a carefully crafted high impacted research area suggestion. Now अब आप देखिए, ये मुझे एरिया भी सजेस्ट कर रहा है कि कौन कौन से एरिया और मैं किस किस तरह से इसके अंदर जा सकता हूँ. इसने मुझे पूरा बता दिया. देखिए, प्रपोज एरिया क्या हो सकता है, डिजाइनिंग एंड इवेल्युएटिंग एन एआई असिस्टेड सोशल इकोसिस्टम फॉर एनहांसिंग अ लॉन्ग टर्म वेल बीइंग ऑफ कैंसर पेशेंट्स. एंड सब देखो साइकोलॉजी की चीज है इसमें आगे. हाउ कैन, अब इसमें कोर रिसर्च क्वेश्चन क्या हो सकता है, हाउ कैन एआई पावर्ड कल्चरली सेंसिटिव एंड पर्सनलाइज्ड सपोर्ट इकोसिस्टम इंप्रूव द साइकोलॉजिकल resilience, social integration, and overall life satisfaction among the cancer patients and survivors across different socio-economic contexts. देखिए कितना बढ़िया वो आ गया. और आप देखिए इसमें भी अभी ये नोबल वर्दी है कि नहीं, देखिए वो उसने बता दिया अभी कैंसर अफेक्ट्स ओवर 19 मिलियन पीपल है. लॉन्ग टर्म सर्वाइवर्स फेस chronic psychological and social challenges that remain under addresses. राइट, इंटरडिसिप्लिनरी भी है इसके तरफ. पॉलिसी इन्फ्लुएंस भी बताया, कुछ शेप ऑफ पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम एंड यूनिवर्सल हेल्थ केयर मॉडल्स. स्केलेबल भी है क्योंकि WHO और UN कैंसर केयर इनिशिएटिव्स हैं जो कि इसको वो ग्लोबल उसमें बनाते हैं. ह्यूमन सेंटर्ड साइंस है. ऐसा कुछ अगर टूल बन जाए, जैसा कि इफ यू कैन डिजाइन एनी AI असिस्टेड सोशल इकोसिस्टम, ऐसा कोई टूल अगर हम बना दें तो ये चीज पॉसिबल हो सकती है. देखिए इसने हर तरह की चीजें, क्या क्या डायमेंशंस इसने इसमें इन्वॉल्व किए. चलिए आप देखिए, नोबेल प्राइज तो नहीं, लेकिन कम से कम एक हाई इम्पैक्टफुल रिसर्च तो इसमें से कर ही सकते. ठीक है, और इसमें अगर मैं इससे पूछूं व्हाट कैन बी द tentative hypothesis and related to the research questions asked here. Okay, yeah. Primary hypothesis: the use of AI-assisted psychosocial supports ecosystem significantly improves the overall well-being of the cancer patient. देखिए ये मेन हाइपोथेसिस इसने बना के दे दी, और साथ में आपकी और भी हाइपोथेसिस है, जैसे कैंसर पेशेंट यूजिंग AI-based personalized emotional support tools show significantly lower levels of anxiety and depression than without access of such tools. सोशल रीइंटीग्रेशन एंड स्टिग्मा रिडक्शन की इसने हाइपोथेसिस आपको बना दी. स्पिरिचुअल एंड एक्सटेंशियल वेलबींग की इन्होंने आपको बना दी. डिजिटल या फिर थेराप्यूटिक्स एंड यूजेबिलिटी की आपकी जो है
हाइपोथेसिस भी पॉजिटिव कोरिलेशन है कि नहीं, आप क्या क्या इसमें टेस्ट कर सकते हो। आप देखिए पूरा पूरा थीसिस का एक टॉपिक आप यहाँ से ले सकते हो कि भाई ये आइडिया आपको जनरेट करने, काम आपको करना पड़ेगा लेकिन एटलीस्ट कुछ आइडिया तो आप इससे ले सकते हो ना। चलिए आपके एरिया की बात करते हैं, ठीक है। मैं आई एम जस्ट एंडिंग दिस। अब जैसे इसमें मॉडरेटर, मीडिएटर, वेरिएबल्स तक आप इसने आपको बता दिए कि एडवांस मॉडलिंग आप कैसे करोगे यूजिंग स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग। अब ये यहाँ तक अपने को अपना लेवल होना चाहिए समझने का, तब अपन इसको अच्छे से समझ पाएंगे। क्योंकि इसने जो SCM ने देखी नीचे स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग की बात करी है, मिक्स मेथड, ट्रायंगुलेशन की बात करी है, तो ये सब चीजें अपने को आनी चाहिए कि भाई किस तरह से अपन, तो ये आपको ये टूल आप देखिए कितने अच्छे से आपको ये बता रहा है कि आप किस तरह से इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च आप जो है वो कर सकते हो। ठीक है, चलिए मैं अब आपसे ही पूछता हूँ, मुझे बताइए आप में से कि कौन इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च पे किस तरह से क्या काम आप चाहते हो, थोड़ा इमेजिन कीजिए। सजेस्ट मी द topics and topics for high impactful research on, बताइए, impactful interdisciplinary research। रिसर्च ऑन, हाँ बताइए, कोई भी टॉपिक के लिए बताइए। सर इन मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से। ओके, मैनेजमेंट में भी अपन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कर लेते हैं ना सर। ह्यूमन रिसोर्स, AI को भी जोड़ दीजिए सर इसी टॉपिक में। ओके ओके, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस and intelligence and mass communication, है ना, mass communication। अब जैसे मुझे एक ही आगे का प्रॉब्लम में मैं लिख देता हूँ, also suggest various research questions and frame the appropriate hypothesis for to be reported in a postdoctoral thesis। ठीक है जी, तो मैंने इसको एक तरह से ये भी बता दिया कि मेरा पर्पस क्या है, पोस्ट डॉक लेवल का मुझे इसको देना है। देखिए, AI powered recruitment and employer branding through mass media, impact of AI driven communication tools on organizational culture and employee engagement, AI bias, algorithmic ethics and diversity in media and HR interfaces। अभी देखिए ये चौथा वाला देखिए बहुत ही बढ़िया आया, sentiment analysis of organizational communication and its effect on employee well-being। देखिए कितना शानदार टॉपिक आया, बताइए आप। डिजिटल सर्विलेंस, आप सोचिए ना, हम लोग क्या कर रहे हैं आजकल, हम लोग कर रहे हैं अच्छा कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ पब्लिक प्राइवेट सेक्टर बैंक कर लेते हैं, है ना, और या फिर जो है वो एक अखबार का दूसरे अखबार से कंपैरिजन मध्य प्रदेश में कर लेते हैं। अरे साहब, अरे वो मध्य प्रदेश में हुआ था और राजस्थान में हुआ नहीं, वो कर लेते हैं, क्योंकि राजस्थान में तो ये काम हुआ ही नहीं। हमारा जो रहता है ना, जब हम लोग या फिर हमारे स्टूडेंट्स जब अपने थीसिस का जो सिनॉप्सिस का प्रेजेंटेशन करने आते हैं तो कहते हैं क्या निकला साहब, गैप ही निकला साहब, मुझे कोई पेपर ही नहीं मिला राजस्थान का, या मुझे कोई पेपर मिला ही नहीं महाराष्ट्र में, कहीं ऐसा कोई काम ही नहीं हुआ सर।
तो क्या कर रहे हैं हम लोग? ये काम करना चाहिए ना, जो काम हुआ ही नहीं, कहीं नहीं हुआ, और हम लोग वी आर एक्चुअली री इन्वेंटिंग द व्हील अगेन एंड अगेन, and then pathetically we say that our papers do not get published in high impactful journal. कहां से छपेंगे साहब? आपके रिसर्च पे इम्पैक्ट है ही कहां? अब आप देखिए इतने सारे इसने सजेस्ट किए, अब अभी तो मैंने 4 तक ही पहुंचा, आगे देखिए रोल ऑफ एआई इन क्राइसिस कम्युनिकेशन। वाह क्या बात है, क्राइसिस कम्युनिकेशन ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और उसके साथ में एचआर डिसीजन मेकिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। आपका कुछ भी क्राइसिस का कम्युनिकेशन है, कुछ भी हो गया, सपोज जैसे भोपाल गैस कांड हुआ था, उस टाइम पे अगर एक क्राइसिस कम्युनिकेशन जैसी चीज होती तो शायद इतने लोग मरते ही ना। इन्फ्लुएंस ऑफ एआई कर्टेल एम्प्लॉयर रेपुटेशन ऑन द जॉब सीकिंग बिहेवियर, एआई एंड फ्यूचर ट्रेडिंग, पर्सनलाइजेशन वर्सेस स्टैंडर्डाइजेशन। ये देखिए कितना बढ़िया टॉपिक निकल के आया, और रिसर्च क्वेश्चंस तक इसने बता दिया हर टॉपिक से रिलेटेड आपको कि भाई हाउ डू एआई टूल्स शेप द रिक्रूटमेंट। ये रिसर्च क्वेश्चंस आ गए, आगे इसकी हाइपोथेसिस, सैंपल हाइपोथेसिस भी आ गई, दैट एआई enabled employer branding significantly influenced the job seeker's intention to apply। मास कम्युनिकेशन या मास मीडिया के थ्रू जो एडवर्टाइजमेंट होती है या फिर जो रिपोर्टिंग होती है, उसका इम्पैक्ट कंपनी की इमेज और उसके रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन पे पड़ता है क्या, या फिर उसकी ब्रांडिंग पे पड़ता है क्या? ऐसा काम होना चाहिए ना जिसको, और आप, मैं गारंटी देता हूँ ये सब के सब आपके स्कोपस के पब्लिकेशंस के लेवल के काम यहाँ पे। इंटरनल एआई कम्युनिकेशन टूल्स आप इसके ऊपर काम कर सकते हो, बायस एंड डाइवर्सिटी पे, एआई सर्विलेंस कम्युनिकेशन, इस पे आप काम कर सकते हो। देखिए कितने बढ़िया चीजें इसने सजेस्ट करी। चलिए इसमें से एक टॉपिक अपन उठाते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं कि उसमें अपन क्या, मतलब इसके आगे क्या हो सकता है। ठीक है, तो मुझे ये 4 नंबर वाला अच्छा लगा था, सेंटिमेंट एनालिसिस, ठीक है, ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन एंड इट इफेक्ट्स ऑन एम्प्लॉय वेलबींग। तो मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, मैं यहाँ लिख रहा हूँ फॉर द टॉपिक ये वाला, suggest me some high impactful journal articles for preparing an effective literature review देखिए इसलिए आपको कुछ बताया, देखिए चैपमैन, देखिए पूरा पूरा आपको साइटेशन इसने दिया है, 2023 का काम, और ये स्ट्रेस एंड वेलबींग एट द स्ट्रेटेजिक लेवल, ये आपने ये इसने पूरा पूरा आपको साइटेशन दे दिया। एनालिसिस ऑफ, और इसको आप ये भी पूछ सकते हो, फॉर द above references also provide the appropriate DOI। वो भी मांग लो आप, क्योंकि कितनी बार गलत वो करता है, वो भी पहले से ये देखिए DOI के साथ में आपको दे रहा है, ये रिसर्च गेट का दिया इसने, ये प्रॉपर DOI, अदर सोर्सेज ऑफ योर लिस्ट। अब इसमें आई कुडंट फाइंड, अब देखिए DOI यहाँ पे नहीं है इन ओपन एक्सेस, यू मे नीड टू चेक द पब्लिशर्स कॉन्टैक्ट एंड ऑथर्स। तो आप क्या करोगे, इसको उठा के आप यहाँ से ये वाला जो पेपर है इसको आप जो है उस पर सर्च कर सकते हो। तो सर्च गेट पे मैं देखता हूँ कैसे, सर्च गेट पे जाके इसको सर्च करने की कोशिश करते हैं। और या फिर गूगल स्कॉलर की जाते हैं। मैं यहाँ से शेयरिंग चेंज करके
तो आपको ले जा रहा हूँ गूगल स्कॉलर, ठीक है, गूगल स्कॉलर। ये रहा, देख पा रहे हैं ना गूगल स्कॉलर मेरा? तो यहाँ पर मैंने वो डाल दिया, केस स्टडी देखते हैं यहाँ पे मिलता है। ये देखिए, ये मिल गया, ठीक है। तो आप यहाँ से अपना आपने जो चीज देखी स्ट्रिंजर का है नहीं मिलेगा। अब इसको साइड कैसे कर सकते हो आप, वो यहाँ पे आप ले सकते हो। ये इस तरह से इसको साइड, किस में साइड करना है वो तक भी आपको मिल जाए, आपको इसको कैसे साइड करना है, ठीक है। तो आप जाके यहाँ से उठा के आप अपने हिसाब से, सपोज वो DOI आपको नहीं देता है तो आप स्प्रिंजर की वेबसाइट पे जाकर उसका DOI मांग सकते हो, वहां पर आप ले सकते हो, ठीक है। जैसे इसके ऊपर जाके देखते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे DOI कहीं ना कहीं दे रखा होगा, ये इसका एब्स्ट्रैक्ट है सारा का सारा। ये देखिए इसके अंदर के रेफरेंसेस दे रखे हैं। लॉगिन, अभी लॉगिन बाय इंस्टीट्यूशनल एक्सेस अपने पास में है नहीं यहाँ पे। और ये आपको साइटेशन यहाँ से आपको मिल जाएगा। आप एब्स्ट्रैक्ट देख के और इसमें से कुछ निकाल के साइट करना चाहे तो साइट कर ले, नहीं तो इसके वाले जो आपके वो रहेंगे ऑथर्स, उससे आप डायरेक्टली मांग भी सकते हो। तो कितनी बार मोस्टली ऑथर्स आपको बाय मेल भेज देते हैं, लेकिन इतनी तकलीफ कौन करे, तो थोड़ी सी तकलीफ अपने को करनी पड़ेगी, तब जाके अपना ये काम हो पाएगा, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था कि इसका आप लिंक भी यहाँ पे शायद दे रखा होगा। इवन आप इसके यहाँ पर जाकर जो आपका जो भी पेपर इसमें आया है उसके लिंक पे जाके आप क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे तो काफी सारी चीजें आ गई, पीछे जाता हूँ वापस। मतलब यहाँ पर आपने जो साइट तक कॉन्फ्रेंस पेपर आपने लिख दिया, तो ये देखिए, ये आ गया आपका, देखिए ये DOI आ गया, ठीक है जी। तो ये आप देखिए 2025 का पेपर है और साथ में इमोशंस इन AI इन वर्कप्लेस एनवायरनमेंट केस स्टडी आपने। तो इस तरह से आपको कलेक्ट करना पड़ेगा, एक अच्छा आपका जो है वो कलेक्शन बन जाए, तो उसके बाद आप चाहो तो इसको वो कर सकते हो, ठीक है। फिर से अपने उस पर चला जाता हूँ, ChatGPT। देख पा रहे हैं मेरा ChatGPT? ओके, तो ये एक चीज थी जो मुझे आपको बतानी थी कि कैसे अपन इसमें अच्छा इफेक्टिव लिटरेचर रिव्यू कर सकते हैं। अच्छा, अब इसी के अंदर ही अगर अपने को कोई और इसमें देखना हो, जैसे इसी टॉपिक पे या फिर इसी से रिलेटेड कुछ और टॉपिक्स के ऊपर, अगर जैसे फॉर एग्जांपल मुझे जो टॉपिक अच्छा लगा था पहले वाला, ये वाला, इसका जो सेंटिमेंट एनालिसिस है, इसी के ऊपर इसी से रिलेटेड कुछ और अच्छे रिसर्च पेपर मुझे चाहिए, तो आप इसको कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट करो और इसको पूछो कि इस टॉपिक पे मुझे और अच्छे 10 या फिर 15 इम्पैक्टफुल जर्नल आर्टिकल दे। तो राइट मी 15 more articles of similar nature for framing research questions, research objectives which are रिसर्च पेपर्स आपको ये देंगे। तो वही मैंने आपको बताया, जैसे कि आपको हल्का DOI वगैरह देख के चलना पड़ेगा। कम से कम इसने बता दिया, इसको आप जाके गूगल स्कॉलर में, रिसर्च गेट में, कहीं पे भी आप पेस्ट करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। ये कॉम्प्लीमेंट्री थ्योरेटिकल अप्लाइड वर्क्स भी है जो आपको फ्री में भी डाउनलोड आप कर सकते हो, क्योंकि ये साइंस डायरेक्ट से है। देखिए sciencedirect.com, ये शायद आपका हो सकता है कि इसको खोल के देखते हैं, ये शायद आपका ओपन एक्सेस। देखिए अभी इसने आपको बता दिया ओपन एक्सेस पेपर है, देख पा रहे हैं या फिर वो चेंज हो गया टैब? नहीं, चेंज हो गया जैसे मैंने वहां से क्लिक किया था।
तो दिखा रहा था, जैसे मैंने यहाँ वहाँ पे क्लिक किया था, इट हैज टेकन मी टू दिस पर्टिकुलर टैब, इसमें चला गया। अब देखिए इसने आपको सीधा का सीधा जो है वो ले जाके ओपन एक्सेस वाला जो जर्नल है वो उसने आपको वहां पे ले गया, क्योंकि आपने इसको बोला कि मुझे कॉम्प्लीमेंट्री चाहिए, तो इसने आपको ओपन एक्सेस वाला जो है वो बता दिया। यहाँ से आप चाहो तो इसको डाउनलोड भी कर सकते हो, पूरा ओपन एक्सेस है, तो देखिए ओपन एक्सेस लिखा हुआ, पूरा पेपर आपका डाउनलोड हो जाएगा, देखिए फुल पेपर आ गया उसमें, पूरा पेपर विद ऑल मॉड्यूल्स और सब लोग है। अब इसका कुछ और हाईलाइट्स वगैरह कुछ और यहाँ से करना हो तो आप यहाँ से जाके देख सकते हो। डिक्लेरेशन, एनालिसिस जैसे मुझे देखो, हर ऑब्जेक्टिव्स का एनालिसिस इसमें पेपर में कैसे लिखा हुआ है तो आप जो सीधा आपको यहाँ से, और यहाँ से अगर आप डाउनलोड करोगे तो आपके पास फुल इशू, पूरा का पूरा इशू आपके पास होगा। अब आप इसमें क्या क्या डाउनलोड करना चाहते हो वो आप, पूरा इशू चाहिए तो 83 पीडीएफ डाउनलोड, तो इतने को करने नहीं, ठीक है जी। तो ये इस तरह से आपका ये रहता है कि आप कैसे मतलब अपनी रिसर्च को बहुत ही अच्छे तरीके से इसको आप मॉडिफाई कर सकते हो, इसको अच्छे से आप उसको ले सकते हो। सर अब अपन थोड़ा और आगे चलते हैं, या अभी तक कोई क्वेश्चन है तो आप पूछना चाहें तो? एनी क्वेश्चन टिल नाउ? सर ये लास्ट वाला जो पार्ट अभी आपने मेंशन किया वो एक बार क्विकली मतलब रिपीट कर सकते हैं प्लीज, लाइक वेरी ब्रीफ। मतलब आप स्पेसिफिकली क्या जानना चाह रहे हैं? वही ये जो आपने ओपन एक्सेस वाला अभी जो किया था वो। अच्छा ओके ठीक है, मैं अभी आपको बताता हूँ क्योंकि मैंने वो ऑफ नहीं किया है। देखिए मैं जब इसको जब मैंने प्रॉम्प्ट इस तरह का डाला था, है ना, जब मैंने ये प्रॉम्प्ट डाला ना तो इसने मुझे कॉम्प्लीमेंट्री थ्योरेटिकल अप्लाइड वर्क से, ये देख मेरा प्रॉम्प्ट आपको वहां से ले सकते हैं। For the above references जो इससे पहले दिया था, also provide me appropriate, अच्छा तो DOI वाला है, ये रहा सेंटिमेंट एनालिसिस, ये मैंने एक चूज किया पेपर, ठीक है। प्रोवाइड मी 15 more articles of similar nature for framing research objectives which are unique। तो मुझे अभी रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स जो जिसपे भी काम नहीं हुआ है मेरे को वो फ्रेम करना है, तो मैंने इसको कहा कि ये फॉर्म है, तो इसने क्या मुझे कुछ की रिसर्च पेपर्स दिए बस, इसी के साथ साथ में इसने मुझे कॉम्प्लीमेंट्री थ्योरेटिकल अप्लाइड वर्क्स दे दिए। तो ये जहाँ कॉम्प्लीमेंट्री वर्क्स देगा ना आपको, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो जितने भी काम है आप इसमें से किसी पे भी क्लिक कर लीजिए, ये आपको फ्री में डाउनलोडेबल मिल जाएगा, नहीं तो बाकी पेपर्स के लिए आपको पेड में जाना पड़ेगा। जैसे ये विकिपीडिया पे ऑलरेडी है, राइट, ये जो है वो साइंस डायरेक्ट पे है, एल्सवियर पे जो उसको हम फोकस करते हैं, ठीक है। ये और भी एक जगह है जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है PMC NCBI, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, जैसे यहाँ जाके देखते हैं। इसके लिए मुझे आपका फॉर्म मुझे शेयरिंग चेंज करनी पड़ेगी। नहीं अंडरस्टूड सर, यही जानना। गॉट इट थैंक यू सो मच। समझ में आ गया? या ठीक है, सो विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन actually go to those places which will provide you free papers which are open access. Okay, now further you can craft the unique research objectives जिस पे काम नहीं हुआ है, evaluate how the real time meeting sentiments, that is verbal, correlates with the psychological safety over the day, right? Access how the transparent internal communication analyzed via SA mediate the impact of psychological safety climate। अभी SA जो है वो किसी ना किसी पेपर में अब उस तरह का सेंटिमेंट एनालिसिस एक्चुअली, दिस इज व्हाट, बिकॉज आई हैव टेकन द सेंटिमेंट एनालिसिस एज माय मेजर थिंग, सेंटिमेंट एनालिसिस, ओके। तो वो उस तरह के आपके क्वेश्चंस बता रहा है। नेक्स्ट स्टेप फॉर द लिटरेचर रिव्यू बताएगा, वो आपको सिंथेसाइज कर लीजिए, गैप्स आइडेंटिफाई कीजिए, है ना। तो इवन आप चैट जीपीटी को ये भी कह सकते हो कि भाई ये मेरा पेपर है, इसमें जरा मुझे गैप्स आइडेंटिफाई करके दो, तो अटैच द पेपर ओवर हियर, यहाँ पे आप जाके पेपर को अटैच कर लीजिए और उसको बोलिए कि इसमें जो है वो हमारे को इसमें गैप्स निकाल के दे। तो आपका जो लिटरेचर रिव्यू का काम है वो आप चैट जीपीटी से बहुत अच्छे से करवा के अपने हिसाब से आप लिटरेचर रिव्यू को लिख सकते हो, जो आपको एक अच्छी डायरेक्शन देगा, एक अच्छी रिसर्च करने के लिए। देखिए हम लोग
चैट जीपीटी को मिसयूज करते आए। यहाँ से निकाला, कॉपी किया, पेस्ट किया, चिपका दिया और अपना डिसर्टेशन या फिर थीसिस जमा करा दिया, फिर बाद में हम कहते हैं यार ये तो एआई दिखा रहा। आप एआई का प्रॉपर यूज करके जहां से एआई खत्म होता है वहां से आप अपना रिसर्च चालू कीजिए प्लीज, तो आपको कितना अच्छा और कितना बढ़िया वो आपको दिखाएगा हर चीज। ओके, तो ये काफी सारी चीजें मैंने आपको आज बताई है। और कल जो है, कल लास्ट डे है, कल आप एक काम कीजिए क्योंकि कल आखिरी दिन है, तो मुझे जो अपना व्हाट्सएप का ग्रुप है उस पर मुझे लिख के भेजिए कि आप क्या चाहते हैं कि मैं यहाँ बताऊं, तो मैं वही आपको बताऊं। क्योंकि एनालिसिस वगैरह तो आपको खाली एक कमांड डालना है, वो हो जाएगा। एक रिग्रेशन में आपको कल और बताऊंगा इसमें किस तरह से होता है, क्योंकि एक टी टेस्ट वगैरह भी अपन देख लेंगे। क्विक है वो, बहुत तुरंत हो जाएगा। मतलब आप समझ लीजिए 10-15 मिनट में टी टेस्ट और 10-15 मिनट में आपका रिग्रेशन में बता दूंगा कल। और बाकी आप जो चाहते हैं कि भाई ये कैसे हो सकता है, या आपकी जो क्वेरीज हैं वो मैं चाहूंगा कि मैं उनको कर लूँ, ताकि अपना ये सेशन जो है वो अच्छे से इफेक्टिव हो। मैं ये नहीं चाहता जो मेरे पास है मैं आपको दे दूं, मैं ये चाहता हूँ आप क्या सीखना चाहते हो, या फिर आप अपना खुद का ही कोर्स उठा लो जो इसमें था, जो 5th डे में है वो भी मैं काफी कुछ इसमें, जैसे जो आज का था, आज का एजेंडा तो अपना हो गया, जो मुझे आज पढ़ाना था वो मैंने सब करवा दिया, तभी मैंने उठा के ये वाली चीज लिखी आपसे, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव्स और फ्रीक्वेंसीज और इसके ऊपर मुझे आज बात करनी है। कल जो मैं बात करूंगा वो टी टेस्ट पे बात करूंगा आपकी, और रिग्रेशन पे बात करूंगा, कोरिलेशन भी मैं आपको साथ ही साथ रिग्रेशन के करूंगा। तो ये सब आधे पौने घंटे में होता है। उसके बाद आप मुझे ये बताइएगा कि आपको क्या चाहिए, तो जो क्वेश्चंस में आपको उसमें हो, तो आप अगर क्वेरी है तो आप उससे प्लीज जरूर पूछिए, और मैं चाहूंगा कि, और आप पहले से बताएंगे तो मैं उसके लिए प्रिपेयर्ड रहूंगा। इमीडिएटली बताएंगे तो हो सकता है कि मुझे थोड़ा सा समय भी लगे, बट यस, दिस इज व्हाट इज ऑन माय साइड फॉर टुडे। तो यहीं पे इसको विराम देंगे, समय अच्छा ज्यादा हो गया मुझे तो पता नहीं चला, तो नो इश्यूज, मेरे पास अभी भी टाइम है, आपके पास भी है तो मैं और डिस्कस भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ पारुल सोनी, आपने कुछ पूछना है मुझसे, प्लीज पूछिए। मतलब मैंने कुछ जो बताने थे ना, मैंने उसके नोट्स बनाए, देखिए मतलब मेहनत करी है मैंने, थोड़ी नोट्स बना के, और फिर मैंने आपसे कुछ चीजें मैंने बताने की कोशिश की जो चीज मैं बताना चाहता था। तो 2 प्रॉम्प्ट्स मैंने जो डाले, दोनों के मैंने 2-2 पेज के नोट्स हैं मेरे पास, तो उससे मैंने थोड़ा सा करने की कोशिश करी है। और हाँ बताइए पारुल जी, वीडियो के बिना मैं आंसर नहीं दूंगा। यस पारुल मैडम, ओपन योर वीडियो एंड आस्क योर क्वेश्चन। पारुल जी पता नहीं कहाँ गायब हो गई। हाँ जी शैलेश जी बताएं। सर नमस्कार। नमस्ते शैलेश। सर मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं हिंदी में थोड़ा ज्यादा काम करता हूँ, हाँ मेरा 70-80% काम हिंदी में होता है। जी। तो हिंदी में भी ये जो DOI वेरिफिकेशन है, ये क्या हिंदी में है ऐसी जर्नल्स? बिल्कुल है सर। DOI एक सर्विस है एक्चुअली। DOI जो होता है ना, वो डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर कहते हैं जी। ऐसा कोई भी काम जो कि डिजिटली मौजूद है उसका DOI लिया जा सकता है, समझ रहे हैं आप? लेकिन तो हिंदी के, हाँ वो हिंदी में अभी आजकल थोड़ा कम है, पर है हिंदी के ऐसे भी जर्नल। मैं आपसे बताऊंगा, एक मैं जुड़ा हुआ हूँ इंस्पिरा रिसर्च एसोसिएशन से, उनके काफी सारे जर्नल्स जो है वो हिंदी में है, और वो हिंदी में भी जो पेपर होते हैं उनके DOI देते हैं। मैंने खुद अभी 2 पेपर हिंदी में लिखे हैं, गुरु ग्रंथ साहिब पे और सिखिज्म पे। मैं मतलब थोड़ा सा मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा सा रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए अपने धर्म के प्रति भी, तो मैं उस पर अब मैंने लिखना शुरू किया, तो उसके अंदर दोनों में मुझे DOI दिया। तो ऐसा रहता है कि आप हिंदी में भी DOI, और इवन मैं तो कहूंगा आप जब भी लिखें तो ऐसे जर्नल्स में लिखें जो आपको DOI प्रोवाइड करता है, उससे आप पूछिए, है ना। तो डिजिटल क्या व्यक्तिगत स्तर पे DOI अप्लाई किया जा सकता है? मान लीजिए मेरा पेपर कहीं छप गया। देखिए DOI कौन देता है? DOI वो देता है जो पब्लिशर है ना। तो इवन अपना जो पब्लिकेशन चलता है, अपने इधर से भी एक जर्नल निकलता है अपना
कम्युनिकेशन टुडे, उसमें भी DOI की सर्विसेज हो सकती है, अगर सर चाहे तो उसमें भी किस तरह से करना है वो कैन बी डिस्कस। देखिए थोड़ा सा उसमें पैसा लगता है सर, है ना, मतलब इफ यू वांट योर पेपर टू बी डिजिटली आइडेंटिफाइड तो उसमें थोड़ा सा आपको खर्च भी करना है, तो लेकिन वो आप पर्सनली अपना नहीं ले सकते, वो कोई ना कोई जर्नल या कोई पब्लिकेशन हाउस ही DOI लेता है। जी तो मैं तो इवन ये सजेस्ट करूंगा सर को भी कि अपना DOI से अपना शुरू करें सर इसको, और मेरी कोई मदद चाहिए तो मैं पूरी तरह करने को तैयार हूँ। वैसे तो आराम से आप कुछ सक्षम है सर, हो ही जाएगा। क्या क्या खर्च आता है सर इसमें? जैसे हम लोग भी जर्नल एक निकालते हैं तो खर्च क्या आता है, पर पेपर के हिसाब से या पूरे इश्यू के हिसाब से आता है? नहीं, वो आपको पूरा वो करके देते हैं, ऑर्गेनाइजेशन है उसके हिसाब से वो आपको DOI प्रोवाइड करते हैं, हर पेपर का वो DOI रहता है, तो उसमें हर पर पेपर खर्च आता है। तो अगर आप चाहे तो वो भी जैसे आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी कर लीजिए। बाकी नॉर्मली जैसे मुझे वैसे उतना ज्यादा पता नहीं है, लेकिन हाँ इसमें ये आप कर सकते हैं कि आपके पास कोई पब्लिकेशंस के लिए आते हैं कोई, तो अगर आप पेड पब्लिकेशन करते हैं तो उसमें कुछ अमाउंट आप उनसे DOI का चार्ज कर सकते हैं, जैसे 500 रुपीज आप एक्स्ट्रा भी हम आपको DOI देंगे, और DOI हर कोई लेना चाहेगा ही। सर मैंने अभी चैट GPT से पूछा DOI लेने का प्रोसेस। अच्छा। तो इसने 3 एजेंसीज बताई है जहां जाके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और फिर अपना DOI जनरेट कर सकते हैं, और उसमें ये भी लिखा हुआ है कि कोई पर्सनल ऑथर नहीं ले सकता, जैसे आपको बताया पब्लिशर ही जनरेट करेगा, पब्लिशर ही कर पाएगा। और आप चैट GPT का बहुत बढ़िया यूज कर रहे हैं सर, इससे अच्छी तो चैट GPT सब कुछ है, भूल जाओ अब गूगल सब कुछ फालतू है ना। तो मैंने कल कहा था ना वो अलादीन का चिराग है ना, ये रगड़ो और सामने चीजें मिल जाएंगी। बिल्कुल। अब उसमें थोड़ा बहुत सही गलत के खतरे हैं, आशंकाएं हैं, वो अलग है, वो अपने को ध्यान रखना है। आप बेसिक काम हो जाएगा आपका। अब दीपशिखा जी आ गई है और वो चाहती हम तो बनावट सर से भी यही रिक्वेस्ट करेंगे कि कम्युनिकेशन टुडे के जो पेपर्स हैं वो DOI के साथ बहुत दिन से सोच रहा हूँ, सुविधा शुल्क होगा वो हम सब जो कर डालिए सर। आप सोच रहे हैं, मैं कई दिनों से सोच रहा हूँ, लेकिन वो प्रोसेस नहीं मालूम था। मैंने वेबसाइट मेंटेन करने वाले से भी कहा, लेकिन अभी चैट GPT की हेल्प ले ली, क्योंकि 4 दिन से चैट GPT के उसमें घूम रहा है, तो आइडिया लग गया है। अब आगे बढ़ेंगे, अपन करेंगे ये भी। मेरा निवेदन यही रहेगा कि उसका शुल्क जो भी लगेगा वो हम सब ऑथर्स देंगे। बिल्कुल। अच्छा, इवन एक चीज और भी है, मैंने आपसे मैंने जो चीजें डिस्कस करी कि आप कैसे इसको यूज करके अच्छे रिसर्च क्वेश्चंस पर आए, उस पर काम करें जिसकी सोसाइटी को जरूरत, तो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो अपने को, मतलब वी मस्ट ऑल कमिट टू डू अ क्वालिटी रिसर्च। और आपके पास में टूल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो हम क्यों वापस वही की वही चीजों को हम करते रहते हैं जो ऑलरेडी पहले हो चुके हैं, उनसे हमें दूर है। तो ये मेरा निवेदन सबसे है, हाथ जोड़ के कि अच्छी क्वालिटी रिसर्च करें, और प्लीज, मतलब मैं आपको फिर से प्लीज करके कह रहा हूँ, प्लीज मुझे भी इन्वॉल्व करें और मेरा प्लीज यूटिलाइजेशन करें। आपके ग्रुप पे मैं ऑलरेडी हूँ, तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछिए, आप मेरे से पर्सनली फोन पे बात कीजिए प्लीज। आई एम रेडी टू टॉक टू यू एंड आई एम अवेलेबल फॉर ऑल। मैं तो सोच रहा हूँ सर डेरा डाल दूं आपके यहाँ यूनिवर्सिटी। आइए ना, आइए, जैसे तो आप ये के एल्यूमिनस भी है, बिल्कुल यू आर मोस्ट वेलकम। करीब 3-4 घंटे की दूरी पर पन्ना में हूँ मैं, तो आइए ना, तो वहीं आ जाता हूँ। आइए, कोई बात नहीं। आप इसमें आप आएंगे तो कुछ ना कुछ समय हम भी निकालेंगे, कुछ कोलैबोरेटिव रिसर्च करेंगे, क्या दिक्कत है? जी जरूर सर। Sir, I also welcome to you in Uttarakhand, sir. Professor Banawat sir and sir आप। अरे डेफिनेटली, क्यों नहीं। तो गिरीश जी उत्तराखंड में किस जगह पे हैं? मैं सर करंटली काशीपुर सर में, नियर बाय नैनीताल। ओके, काशीपुर, ठीक है। वैसे मैंने यूपीएस में, यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज यूपीएस देहरादून में मैंने 3 साल मैंने वहाँ काम किया है। मैं वहाँ फाउंडर हेड था डिपार्टमेंट ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का, तो वहाँ से मैं काफी कनेक्टेड हूँ। तो अच्छा लगेगा, तो जाएंगे वापस उत्तराखंड, 3 साल वहाँ रहे, मेरा खुद का मकान भी था वहाँ पे, सेल कर दिया। कैची धाम आइए सर, यहाँ कैची धाम है यहाँ पे। आपके यहाँ तो फैमिली के साथ आने वाली जगह है सर, आप अकेले बुला रहे हो। और फैमिली रानीखेत में आइए सर, वहाँ बिनसर महादेव जी भगवान भोलेनाथ का प्रसिद्ध जो है पौराणिक मंदिर है। कैची धाम का तो रास्ता ही इतना टफ है, ट्रैफिक जाम और
मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे लोगों की इतनी भयंकर श्रद्धा है वहाँ, अगाध। सर आंसर विल बी गिवन बाय द चैट जीपीटी। ये भी सही है। बात वो क्या कौन आ चुके हैं ना, वो ये सब आपके बड़े बड़े अमेरिका के जो। यस सर, तो हनुमान जी का अवतार है सर, वो तो बहुत मतलब सिद्ध स्थली है बिल्कुल। हाँ, डॉक्टर बाबा साहब का आज थोड़ा कम रहा पार्टिसिपेशन, आई वाज मिसिंग दैट सर। नहीं, आई वाज फुल्ली लिसनिंग यू सर, बट इन पैरेलल मेरा एनडीटीवी पर एक सेशन था, वो खत्म हो गया है, अभी 9 बजे वो आ जाएगा, और वो दैट वाज गोइंग ऑन। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट। आप वो क्राइसिस कम्युनिकेशन की बात कर रहे थे, वो क्राइसिस ही वहां चल रहा है, तो आई वाज लिसनिंग इट, और उनसे बात भी कर रहा था, तो एक तो हो गया है, अभी 9 बजे वो रिपीट उसको करेंगे, लाइव खत्म हो गया है और वो करेंगे, तो सॉरी, बट आई वाज एंजॉयिंग इट फुल्ली, और कुछ हद तक मैं उधर था तो कुछ हद तक इधर भी था। राइट, थैंक यू। राइट सर, ठीक है सर, तो इजाजत, दीपशिखा जी आप आगे। जी sir, thank you sir. Thank you so much Pava sir for your enriching session. Your clarity in explaining complex concepts have truly deepened our understanding. A heartfelt thanks to all the participants. Your active engagement and enthusiasm continue to make this workshop a collaborative and intellectually stimulating experience. We are grateful for your time, your attention, and the thoughtful questions that make this session so meaningful. So let us carry forward today's insights into our research journey. Looking forward to welcoming you all tomorrow with the same spirit of inquiry and learning. Thank you once again and have a wonderful evening ahead. And all of you are please requested to fill the feedback form which will be shared in your WhatsApp group. Thank you so much. ग्रुप फोटो नहीं हुआ। बिल्कुल वो इम्पोर्टेंट। जी सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, ग्रुप फोटो सर। Thank you sir. ग्रुप फोटो हो जाए जी, तो एक मैं राय देना चाह रहा था, जो आपको जो फीडबैक फॉर्म है ना, उसमें जो पहले 7-8 क्वेश्चन और टाइम वैसे तब तक करेक्शन डिस्टर्ब हो जाता है तो खत्म है, उसमें सिंपल आप नाम लीजिए और बाकी सब डिटेल तो आपके पास है, पता ठिकाना हर बार, क्या जरूरत है उसमें फीडबैक फॉर्म है। नहीं, वो एक्चुअली सर क्या है, रोज का रोज मुझे चाहिए होता है कि मेरा कौन सा सेशन किस तरह से ला, मैंने इसलिए रिक्वेस्ट कर रखी है सर को। नहीं सर, मैं फीडबैक की बात नहीं कर रहा, जो शुरू में क्वेश्चन है ना, आपका एड्रेस, टेलीफोन नंबर, वो तो सर वो उससे लिंक नहीं होगा ना, आपके जो एड्रेस है उससे लिंक कैसे होगा वो, मेरे ख्याल सर वो टाइम वेस्ट होता है, और इतनी देर में आदमी की मतलब मूड खराब हो जाता है, जो पॉजिटिव तो मैं तो आपको साइकोलॉजिकल बता रहा हूँ, क्वेश्चन चैट जीपीटी भर सकता हो तो बता दीजिए ना। क्वेश्चनर डिजाइन भी एक साइंस है, और उसके तहत ये क्वेश्चनर जो है ना, वो कुछ हद तक हम फीडबैक लूज कर रहे हैं, दैट्स व्हाट आई वुड से। सर हमने मुझे लगता है अगले फीडबैक फॉर्म भी सर हमने चैट जीपीटी से ही बनवाया है। हाँ, उन्हें सब अगली बार कुछ चैट जीपी पर नहीं जाना ना, यही तो सावन सर बता रहे हैं ना। अच्छा सर, एक और आपसे रिक्वेस्ट करनी थी, अब हम बहुत अच्छे, आपने स्टैटिस्टिक यूज्ड टू बी द टफर सब्जेक्ट, इतना लाइव बना दिया है, will we be attempting econometric modeling also as a closing once we're going? Sir, I do not have any problem because I keep on doing that too. तो सोचना एंड में एक सेशन इकोनोमेट्रिक मॉडल फिटिंग भी अगर इसमें डाल दें तो दैट विल बी ट्रू एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन रियल लाइफ। Both that is okay, sir. But what the thing is, over here, if we will do it, then the main crux of this particular workshop will go. For that, we can always have another workshop. हाँ ठीक है, वो आप चाहे तो मैं करवा सकता हूँ, कोई ऐसी बात डन कर देंगे। और एक बात हो रहा है, ये सब हो जाएगा, उसके बाद 1 या 2 दिन का फिजिकल सेशन आप जहाँ बोलेंगे वहाँ आके हम लोग करेंगे। अरे that would be great, definitely. That Bhadawat sahab can plan in Jaipur itself. जहाँ जो भी करेगा, we will bear that, and because अभी एक इतनी बढ़िया बॉन्डिंग बन गई है, and we should cherish that, and इसको सिनर्जी, अभी एनर्जी जनरेट हुई है, सिनर्जी नहीं बनी, सिनर्जी तब बनेगी जब हम बनेंगे सर। तो सिनर्जी के पहले एनर्जी चाहिए ही होती है, तभी सिनर्जीज काम करती हैं। राइट।
थैंक यू। राइट सर, थैंक यू। ठीक सर, तो इजाजत Thank दें। you. बिल्कुल बिल्कुल। राइट, थैंक यू सो मच। Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so Thank much. you. Thank you so much, sir. Thank you.